Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Cancer Ascendant and the predictions for the month of August 2023. Now Cancer Ascendant people are emotionally very sensitive people because they are ruled by moon. They are attached very much with their family, and if moon is very well placed in their birth chart, that is if it is placed in the first house, fourth house, ninth house and 11th house, then these people have a very strong emotional quotient which plays a major role as far as rise in the life is concerned. Your ascendant is one of the four ascendants that has the capability to take people places, and lot of people who have risen very high in their life from very humble beginnings, they have Cancer ascendant. For the month of August, Venus and Sun are first going to be combined in the first house till the time Sun moves into its own house on 17th of August. Venus, however, is going to remain stationed in the first house in the retro position for the whole month. The first half of August would mean that you will get an opportunity to spend a lot of time with your family, but you should avoid the feeling of being extremely possessive towards family members, as well as keeping a check on the irrational behavior that may crop up in emotionally charged situations. The second half of August promises to be a blockbuster month from the finance and cash flow perspective, and all those people who have careers related to finance, banking, jewelry, gemstones, as well as public speaking, they will see a very good month finance wise, especially in the second half from 18th of August to 31st of August. Venus is the lord of your fourth house and 11th house, and it is going to be placed in the first house throughout your month. And apart from spending time with your friends, family, you should also spend time with people who are near and dear to you in this month. So Venus in the first house is all about having fun with the people who are close to you. Mars is the lord of your profession, and it is going to be placed in your third house from 19th of August. So all those people who have career related to media, publishing, marketing and tours and travels, they will see a very positive month at their professional front. And if you talk about the dates that are favorable for you as far as shining in the professional domain is concerned, they are 20th and 21st of August and 29th and 30th of August. Mars is also the lord of education and speculation for you. So if you are associated with the stock market, then 20th and 21st of August is a good time to invest in the stock market. And if you are a student, then the week of 22nd to 26th of August is a favorable time to appear for any kind of a competitive exam. Jupiter is the lord of your house of service, and it is combining with Rahu in your house of karma. So all those people who are in service and they want to excel in their on the job front, then the best time in August is between 17th to 19th of August. Saturn is the lord of your business, which is the seventh house as well as your spouse, and it will continue to transit through the eighth house. And the seventh house also does not get the positive aspect of Jupiter that is required for the marriage to go through. So in this case, marriage is not possible in the transit in the month of August, and all those people who are single will have to wait. The key thing that is going to happen in the month of August for you is that Sun and Mercury are going to combine in the second house for a very long time, and they are also going to be aspected by Saturn through the seventh aspect and Jupiter through the fifth aspect. So second house is going to become exceptionally strong, and especially after Sun moves into the second house on 18th of August, and it is going to stay here till 16th of September. You are going to see a very strong second house in play. So not only a lot of time with your family is going to be spent, but you will also see a lot of cash flow coming in during this time frame. Now, there are also certain days where you need to be careful and avoid taking any key decisions. These are also the dates when you should not get into argument with people, and you should keep a relatively low profile. So for you, these days in the month of August are 3rd and 4th of August, 12th and 13th of August, and 27th and 28th of August. Just remain cautious for these 6 days. If you look overall, the month of August is going to be an excellent month for your ascendant, especially because the second house is going to
gain a lot of strength from the time sun enters here from 17th of August to 16th of September. So enjoy this time with your family, and you can also see a lot of cash flow coming through, especially if you are associated with the professions that are indicated earlier by me in the video. So I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching the video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करें कि कर्क लग्न वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, कर्क लग्न के लोग इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनका जो लग्न स्वामी है वो चंद्र होता है। और अगर चंद्र आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, नवे भाव में या 11वें भाव में बैठा हो और उसके ऊपर कोई भी दूषित ग्रह की दृष्टि नहीं होती, तो ऐसे लोगों को अपना इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्टीज होती है, और इसी की वजह से ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपका लग्न कर्क है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि खाली 4 ही लग्न ऐसे हैं जो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर ले जाने की काबिलियत रखते हैं, और कर्क लग्न उनमें से एक है। अगर हम अगस्त के महीने की बात करें तो पहले 17 दिन शुक्र और सूर्य की युति प्रथम भाव में होगी, और इसके बाद सूर्य अपने ही भाव में चले जाएंगे, द्वितीय भाव में। तो 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य और बुध की युति द्वितीय भाव में होगी, और यहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो 4 ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने से द्वितीय भाव में 4 बड़े ग्रहों की ऊर्जा समाएगी, और इसके काफ़ी परिणाम स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेंगे अगस्त के महीने में। इस महीने में जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि प्रथम भाव में 17 अगस्त तक आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का बहुत मौका मिलेगा, लेकिन आपको अपना पॉजिटिव बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा अपने परिवार वालों के प्रति। और कई बार जो भी आप इमोशनल सिचुएशंस होती हैं जिसमें भावनाएं ओवरटेक कर जाती हैं, उन सिचुएशन में आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा और उन सिचुएशंस में जाने से बचना पड़ेगा। द्वितीय हाफ जो होगा अगस्त का वो बहुत ही शानदार रहेगा कैश फ्लो की दृष्टि से, क्योंकि सूर्य अपने ही भाव में विराजमान होंगे अपने मित्र बुध के साथ। और जब भी कभी गुरु और शनि की दृष्टि एक साथ किसी भाव पे पड़ती है तो उस भाव के परिणाम देने की क्षमता एकदम से काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आपके लग्न के बैंकिंग से जुड़े व्यवसाय में हैं, ज्वेलरी, जेमस्टोन्स, पब्लिक स्पीकिंग इत्यादि आपके व्यवसायों में हैं, उन लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा कैश फ्लो की दृष्टि से। खास करके द्वितीय हाफ जो है अगस्त का, 18 अगस्त से 31 अगस्त का, वो कैश फ्लो की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र आपके चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी हैं और वो लग्न स्थान में बैठे रहेंगे। तो लग्न स्थान से जाता हुआ शुक्र, भले ही वो वक्री ही क्यों ना हो, व्यक्ति को मौज मजा करवाने में समर्थ होता है। तो ये समय है अपने आसपास जितने भी लोग आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ समय बिताने का। इस महीने में आपको मौका भी मिलेगा और आपको ये दोनों हाथों से ग्रैब करना है। मंगल आपके कर्म स्थान के मालिक बनते हैं और ये तृतीय भाव में बैठे रहेंगे 19 अगस्त से लेके। तो जितने भी लोग मीडिया, पब्लिशिंग, मार्केटिंग, टूर्स एंड ट्रैवल्स वगैरह में हैं, उनके लिए प्रोफेशनली ये बहुत अच्छा समय है। और जिन दिनांकों में आप अपने प्रोफेशन में अच्छा समय देखेंगे अगस्त के महीने में, वो हैं 20 और 21 अगस्त और 29 और 30 अगस्त। मंगल आपके लिए पंचम भाव का भी स्वामी बनता है। पंचम भाव से आप विद्या देखते हैं और शेयर बाजार को देखते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के साथ एसोसिएटेड हैं तो 20 और 21 अगस्त का समय बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की दृष्टि से। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो 22 से 26 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं और उन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। गुरु आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और वो 10वें भाव में बैठे रहेंगे कर्म स्थान में। गुरु की केंद्र में स्थिति हमेशा अच्छी कहलाती है, और यहाँ पर ये राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो राहु का कर्म स्थान में बैठना भी व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाता है। तो अगर आप गुरु या राहु की महादशा से इस समय गुजर रहे हैं तो भी ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगस्त में देखें, वो दिन जब आप अपने कार्यस्थल पे आगे बढ़ सकते हैं तो वो 17 से 19 अगस्त तक का समय है, जब आपको आपके नौकरी या व्यवसाय में काफ़ी अच्छा समय देखने को मिलेगा। शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और वो अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं अपनी राशि से। तो यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव से भ्रमण, यानी आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें जब तक आप सारे तथ्यों को बारीकी से जांच परख नहीं लेते तब तक आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। उस पर आपको ध्यान रखना है 2025 तक, जब तक शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं।
आपके सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है और सप्तम भाव के मालिक पर भी गुरु का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जितने भी लोग सिंगल हैं उनको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक गुरु 11वें भाव में मूव नहीं कर जाते तो उनके लिए शादी के अवसर बनने मुश्किल होंगे और उन लोगों को अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अभी हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए, और वो दिन होते हैं जब चंद्र आपकी 6 8 12 से निकलता है। इन दिनों में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता में प्रभाव पड़ता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। तो अगस्त के महीने में जिन दिनों में आपको सावधान रहना है वो दिन है 3 और 4 अगस्त, 12 और 13 अगस्त और 27 और 28 अगस्त। इन 6 दिनों में सावधान रहिए। अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो कर्क लग्न के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि ये द्वितीय भाव में सूर्य और बुध की युति होना अगस्त के द्वितीय हाफ में, और उस पे गुरु और शनि का प्रभाव, यानी कि आपके ऊपर सेकेंड हाफ में पैसे की बरसात होगी अगस्त में, और ये सितंबर के भी फर्स्ट हाफ में ये योग बनता रहेगा। तो इस महीने को आप एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ जिनके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है, और साथ में थोड़ा सा पैसा भी कमाइए। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।